Shraddha Singh for the show Na Hausla Harenge. I'm the anchor of the show Na Hausla Harenge Hum. और मैं चाहूँगी कि हमारी टीम से, ब्रिलियंट टीम से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ। आप हैं हमारे राइटर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर राहुल शुक्ला जी। आप हैं हमारे राइटर एंड क्रिएटर राहुल शुक्ला जी। He is our director and I don't know where is the cameraman. I am the producer of this show. Post-production in charge, Mr. Shashank. Hello. Production head, Mr. Bhupi. Line producer, Mr. Rajiv Tiwari. And our consultant, Mr. Vishal Bhagat. The helping hand in production, Mr. Prasant Kumar Singh. And our respected Ms. Tanu Goyal, executive producer. She is handling all the mails and all the mistakes. यही है हमारी छोटी सी टीम. Can we switch over for the pattern result? Just announce it. See the promo first. First, we'll watch the promo and curtain result of this show. Then we'll back again in this hall and whatever will be your questions and answers. Yeah. मैं भी showing you? Yeah. वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हमने ये शो बनाया है, जिसमें जो औरतें समाज की और अपने परिवार की लिमिटेशंस में रहकर अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, गलत चीज़ों को उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है, उस चीज़ को हम उजागर करेंगे। इसमें जैसे स्टोरीज हैं एसिड अटैक और ऑनर किलिंग, और एक महिला HIV से पीड़ित है, इस तरह की स्थिति से गुजरती हैं। अपना हौसला, जिस उस स्थिति में इंसान अपना हौसला तक हारते जीने की तमन्ना भी छोड़ देगा, ऐसी स्थिति में वो औरतें कैसे अपने हौसले को बढ़ाती हैं और कैसे उस चीज़ को समाज में अपनी। And then we have to externalize this because of जो issues आते हैं, copyrights and everything. So we initially we have given thought by general whatever we read in daily newspaper, basic attack, the victim from Jharkhand, now she is married also. कि वैसी औरतें जो आम जिंदगी में मेन परसेंटेज लोग जो हार जाते हैं बिकॉज ये मेरे जिंदगी में हो गया, ये हो गया. नाउ वी डोंट हैव टू think and we don't have to do anything in life, and we have put together all such stories from real life कि सेक्स ट्रैफिकिंग में फंसी हुई औरत हो या चाइल्ड अब्यूज या रेप एक्यूज, जहाँ इंस्पायरिंग इन दैट सेंस यहाँ लोग सोचते हैं कि अब ये जिंदगी खत्म होगी, दिस इज द डेस्टिनी, एंड देयर वी हैव द सक्सेस स्टोरी. Those women started their life, second inning of life, and now they are successful. This is the concept. Na hausla harenge. Okay, it also conveys somewhere down the line. It also gives us a reminder of Crime Patrol, where There is a very much difference between Crime Patrol and Saavdhan India. It's inspiring. Sir, let me complete, Yeah. sir, with due respect. It also reminds us of Crime Patrol and Saavdhan India, as you said, just right now. Does it mean that the story which you want to telecast on Hausla Na Harenge Hum is a crime against women or crime, women empowerment? See, the concept is one story, 3 episodes. My structure goes like first episode, कैसे victim हुई, and she was having dream and everything, और कैसे negative elements life में, and second episode is like shaping how she defended her, how she started her life, and third what she has done. The second inning life कैसे शुरू. I'm not showing only the crime. My main focus is how she outcome with those difficulties. That's the difference between Crime Patrol and my show. Okay, in
there any possibility? Some women and they openly came into my support, but because of the lack of budget and the structure what I've given into the Doordarshan is again somewhere I'm getting the victim, somewhere I'm not getting the victim. So in low budget to convey the message is the main. My question is to the writer, क्या जहन में रखा आपने जब आप इस तरह के किसी सब्जेक्ट पे काम करते हैं जो महिलाओं की बात करता है, उनकी कामयाबी की बात करता है, उन्होंने किस तरह से लड़ाई लड़ी, और उसको कितना रियल स्पेस में रखने की जरूरत रही है जब आपने लिखा? जब सबसे पहले महिलाओं की बात आती है, खास करके हमारे देश में, तो सबसे पहले मेरे जहन में जो बात आती है वो एक कविता की 2 पंक्तियां हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो मैं जब भी नारी सोचता हूँ तो मुझे संपूर्णता का एहसास होता है। नारी का मतलब संपूर्ण होना, प्रकृति होना, और ये नारी के अंदर इतनी ताकत है, इतनी हैसियत है कि वो किसी भी सिचुएशन से लड़ सकती है, उभर सकती है। और जब मेरे पास ये कहानी आई, ये कॉन्सेप्ट आया लिखने के लिए, तो मेरे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो नारी कहते ही सबके दिमाग में हीरोइंस आती हैं। मुझे रियल हीरोज़ नज़र आते हैं। अपने घर में देखिए, अपनी माँ को देखिए, बहनों को देखिए, वो हर रोज़ कई हर्डल्स से, कई ऐसे सिचुएशन से लड़ रही हैं, बच्चों को उभारती हैं, पतियों को उभारती हैं, परिवार संभालती हैं और बाहर भी जाती हैं। तो ऐसी रियल हीरोज़ मेरे दिमाग में थी, ऐसी कहानियाँ मेरे दिमाग में आई जो हर रोज़ मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, देखता हूँ, अपने आसपास में देख रहा हूँ, और वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। See, today it will be heard on 9:30 DD National, the curtain raiser of this show, which you will also watch after this press conference. And from tomorrow, the show will start 9:30 to 10 every Friday, Saturday, Sunday. Okay, जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं या शो की शुरुआत करते हैं, अमूमन जो सबसे बेस्ट होता है हमारे पास, हम उसको ही परोसते हैं ऑडियंस के लिए। इस बार जो स्टोरी इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट, बट लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूँगा, इस बार जो हम टेलीकास्ट, जो हम आज देखेंगे, जैसे आपने कहा, क्या स्टोरी होगी उसके बारे में बताना चाहेंगे? Our first story is of honor killing. Actually ये ड्रामा है कि उसके लड़की के अपने चाचा ने ही मरवाया और फिर लड़की ने कैसे बदला लिया। सेंसर को लेकर और उस सेंसर के एतराज़ों को लेकर हाल में ही उड़ता पंजाब और बहुत से मुद्दे गरमाए हुए हैं। जब ऑनर किलिंग की बात करते हैं तो पॉलिटिकल दखल बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूरदर्शन खुद हिंदुस्तान का एक राष्ट्रीय चैनल है, वहाँ पे कुछ इस तरह की कठिनाइयों का सामना तो नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहला एपिसोड हो गया ऑनर किलिंग, एक पूरा वोट बैंक है सर। See, as a producer, as a creative, my motive is clear that I'm making this show only to inspire the woman, nothing more than that. There are big people, there's a big discussion and there are big people, Urta Punjab and Censor. Yeah, my production house is also planning a film. It will be shoot in Jharkhand. It's again about the relationship की हम लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, स्काइबस की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, और एक छोटी सी लड़की, she is struggling to find a good friend in her life that she can share about her feeling, about experiences. उसकी वही लड़ाई अभी तक चल रही है। सर जो सोच के गए थे, दूरदर्शन की जीआरपी बहुत ज़्यादा है और जो स्टोरी का जो थॉट है वो दूरदर्शन के व्यूअर्स ज़्यादा देखेंगे। वी can't compete with the GEC and because these shows doesn't have any glamour and TRP like creams, because casting भी वैसे ही है कि जो कहीं नहीं है वही हम लोग के साथ ही हौसला आ रही है। Have you kept a target audience? जब हम दूरदर्शन की बात करते हैं उसके पकड़ गांव देहात हर जगह है, और जब महिलाओं की बात करते हैं तो शायद हिंदुस्तान के हर कोने में जहाँ महिलाएं और खास करके जिन पे अत्याचार होता है वो छोटे शहर कस्बों से आती हैं, सिटीज से भी आती हैं, तो खास ये टारगेट था दूरदर्शन को चुनने का? नहीं, टारगेट में हमने तो ये भी एक स्टोरी में दिखाया है कि केवल जो औरतों की जो प्रताड़ना है वो गरीब घर में नहीं होती है, उससे ज़्यादा रिच जो घर है उसमें सबसे ज़्यादा होती है।
वो पर्दे में रह जाती है, गरीब घर की चीज़ें सामने निकल के आ जाती है। उसके लिए हमने जो 2-3 स्टोरी फीमेल फोर्टिसाइड और ये सब जो है दहेज और ये वो हमने रिच बैकग्राउंड में सेट किया है कि गरीब घर में तो सामने पता चल जाता है, लेकिन बड़े घरों जो रिच लोग हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा ऋणात्मक होती हैं। तो आई एम प्रिविलेज कि मुझे ऐसे शो को होस्ट करने का मौका मिला जो बीइंग अ वुमन एम्पावरमेंट की बात मैं कर सकती हूँ। आज तक मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए जो मैंने उन कैरेक्टर्स को ही जिया है, लेकिन आज मैं वो मुझे करने का मौका मिल रहा है जो मैं अभी तक अपने फील्ड में करियर में नहीं कर पाई हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकती हूँ और जो रियली औरतें झेल रही हैं अपनी ज़िंदगी में और कैसे उसको उन्हें उत्साह से उससे निकलना है, उससे कैसे उभरना है। कम से कम वो मैं ऑडियंस तक बीइंग अ होस्ट वो मैं ऑडियंस तक पहुंचा सकती हूँ। और शायद अगर 10 लोग इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो अगर हम एक 11वें हैं इसके लिए काम करने वाले, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा लोग इसके बारे में काम करेंगे उतना ज़्यादा ही बेहतर होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। So being a woman, I am privileged to host this show. I am very happy. Shraddha, do you got emotional somewhere down the line while working on any episode which you find very interesting and emotional? हाँ, अभी मैंने एक स्टोरी की थी एसिड अटैक को लेके। उसमें नित्या कैरेक्टर है, उसको जब भी उसको लेके मैं बात कर रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे उसका सीरियसली वो दुख दिखा। उसके ऊपर जब एसिड गिर जाता है उसके बाद लोगों का उसके प्रति जो रवैया था वो बहुत ही घृणात्मक और बहुत बुरा था, जबकि उसको लोगों को तो उसके साथ सिंपैथी होनी चाहिए। और डाउन द लाइन हम लोग मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं। हमारे आसपास में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स घट रही होती, कुछ होता है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है अड़ोस पड़ोस में, हम सोचते छोटे छोटे हम फंस जाएंगे इसमें, तो हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बट मुझे लगता है बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें उसमें इंटरफेयर करना चाहिए ताकि वो चीज़ें कल को हमारे घर में भी हो सके। My question is to directors. मतलब शूटिंग करते वक्त तो आर्टिस्ट से करवाना पड़ता है, लेकिन जब स्क्रिप्ट आती है तभी हमारे दिमाग में आ जाता है कि क्या स्टोरी है। तो एक बार उनके साथ बात करके उनको प्रॉपर समझा के फिर वो करना पड़ता है। तो मतलब आर्टिस्ट भी अच्छे होते हैं तो हो जाता है। और खास देखिए जब हम रियल स्पेस की बात करते हैं, डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाहे वो आप बॉम्बे की चाल दिखा रहे हो, झारखंड का कोई घर दिखा रहे हो, डिटेलिंग ऑलवेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डिटेलिंग पे कितना ध्यान दिया गया बीइंग डायरेक्टर ऑफ द शो? हाँ, डिटेलिंग में एक तो एक्चुअली मुझे क्रिएटिव डायरेक्टर का बहुत सपोर्ट हुआ, जिन्होंने मुझे फ्रॉम द बिगिनिंग बहुत समझाया कि ऐसा है। बाकी तो स्क्रिप्ट में भी बहुत क्लियर था, तो शूटिंग करने के पहले से हम लोग क्लियर थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। प्रोड्यूसर से जानना चाहूँगा प्लीज, इफ द प्रोड्यूसर इज ऑन द बोर्ड, उनसे जानना चाहूँगा एक अलग मुद्दे को, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे ये सब बनाना, यू नो एनीथिंग, इफ यू मेकिंग अ शो, इफ यू मेकिंग अ फिल्म, इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस जहाँ बहुत सारा पैसा, बहुत सारा वक्त लगता है। इस तरह के मुद्दे को First thing for me is not challenge, not a risk, is my passion. And I waited 3 years दूरदर्शन के चक्कर में, 3 साल मुझे लग गए शो को और लाने में। तो बीइंग एज अ प्रोड्यूसर आगे भी जो चीज़ें हैं वो जो सारे सब्जेक्ट हैं, इज नॉट फॉर द कमर्शियल वैल्यूज, इज अ पैशन टू शो। एक जिंदगी मिली है जितने तरीके की, जैसे भ्रूण हत्या पे रिकॉर्डेड 13 songs. The singer is from Haryana and I will put all the songs and I will make telefilm to make it for the Haryana and anything. तो इस my passion सर होगी and जितने ऑडियंस तक पहुंच जाए, या आप लोग हमारे इन लिमिटेड बजट हमारे सीरियल से अगर आप कन्विंस हुए या ये बोले कि नो इट्स अ वेरी गुड एफर्ट, एंड अगर 4 महिलाएं भी इंस्पायर हो जाती हैं तो सर यही हमारी चीज़, उससे ज़्यादा क्या सोचना। Because nowadays is a 9 channels और 9 channels में there is MH channel and MTV and everything। हम कहाँ स्टैंड करेंगे, कहाँ लोग देखेंगे? तो उन सारे कंपटीशन में अगर 5 लोग देखें बहुत बड़ा है। मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि जब लोग ये देखेंगे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ किसी के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि इंसान जीने का के बारे में भी सोचना छोड़ देता है। वो इस पॉइंट पे जाके ये सोचना कि कैसे मैं इस चीज़ को फेस करूं और कैसे मैं इस चीज़ से निकलूं ताकि मैं एक एग्जाम्पल सेट करूँ दुनिया के लिए। तो मुझे लगता है इससे 100%
ये तो मतलब तय है कि 100 नहीं तो कम से कम 40 या 30 या 20 कितनी औरतों को तो ये इंस्पिरेशन देगी ही देगी, और वो बहुत है, वो एफर्ट बहुत है। Thank you so much. We'll see the teaser now. Those who want to look at that. Shashank? शांत Sir, Pandit ji. ऑल ऑफ यहाँ से Okay, done. Thank you. चारों का. Thank you. सब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से जहन में आया, क्या कहेंगे बताइए? you have to ask question that I can tell you. हाँ, आपको ये प्रोग्राम में ना हौसला हारेंगे हम, ये कॉन्सेप्ट जहन में कब आया, कैसे आया आपके जहन में कि ऐसा एक प्रोग्राम बनना चाहिए? 3 years back, when I was thinking for a good concept, I wanted to produce a serial that should be the appealing for the masses, inspiring and reality से नज़दीक हो, and it should be for the masses and the class जो suppressed class है। तो पहले इसका नाम हमने डाल के रखा कि जिनको ज़रूरत होती है, फिर वो पुलिस और सिस्टम, फिर उस आइडिया को कॉन्सेप्ट को डेवलप करते करते हमने ये किया कि सी वॉट एवर यू वांट टू डू, द सिस्टम इज विद यू, लॉ इज विद यू, पुलिस इज विद यू। इफ केवल एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपकी इच्छा और चाह होनी चाहिए टू डू ग्रेट वर्क, टू रीजुमिनेट योरसेल्फ, एंड आफ्टर फेलियर यू विल बी सक्सेसफुल। एंड फिर वो कॉन्सेप्ट डेवलप करते करते वी केम इनटू द रियल लाइफ इंसिडेंट व्हाट we are reading in the newspaper and other magazines of the day-to-day general life, the city, including the villages and everywhere, जहाँ पे चाहे निर्भया हत्याकांड हुआ हो, जो भी हुआ हो, तो वो आइडिया डेवलप करते करते we came into this inspiring successful story talking about the women empowerment, to educate them to how to fight with the situation, how to be successful, and this way we finalize the concept for this ना हौसला हार। तो सारे एपिसोड सिर्फ महिलाओं के होंगे या फिर कुछ सोचा है कि और भी जो? Initially we have given thought to 2-3 जैसे टाइम्स नाउ में अवार्ड मिला था कि the person is blind and deaf and he is successful, एक blind man है, is a very much successful businessman in Korea, लेकिन वुमेन एट लार्ज इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सफरेबल थिंग्स। तो और इतनी स्टोरी है उनको लेके कि व्हेन विल गेट द एक्सटेंशन विल गिव द सेकंड थॉट फॉर दैट। तो किन किन मुद्दों पर फोकस करने वाले हो? कोई मुद्दा ऐसा है कि एसिड अटैक हो गया, भ्रूण हत्या हो गई, एसिड अटैक, फीमेल फोटिसाइड, उसके बाद चाइल्ड अब्यूज, सेक्स ट्रैफिकिंग, फिर मैरिजेस, फिर इकॉनमी, एंड द थिंग इज दिस द एजुकेशन। बाय ऑल द स्टोरीज वी आर ट्राइंग टू go into the education as the most important thing, and you have to be educated to fight for your causes. How you will approach, जैसे एक स्टोरी है कि केमिकल फैक्ट्री में, इट्स अ रियल स्टोरी, रियल कपल न्यूली मैरिड, तो शी लॉस्ट हर हस्बैंड, मतलब शादी के 1 हफ्ते के बाद ही
एंड कंपनी वाले ने कंपनसेशन में उसको 1 रुपया भी नहीं दिया। वो गरीब घर की लड़की, न्यूली मैरिड, शी स्टार्टेड हर एजुकेशन आफ्टर 15 years she completed her law degree and then she fights back after 25 years and she won the case और उसको उसके हस्बैंड के नाम कॉम्पनसेशन मिला एवरीथिंग। श्रद्धा जी कैसे बोर्ड पे आए, कैसे उनको चुना गया था? श्रद्धा जी कैसे बोर्ड पे आए? श्रद्धा जी, see, very frankly, there I am very much thankful to the industry जो भी इमेज बोलते हो, to whomever I approached, nobody has given me the negative answer. The budget was the thing. When we approached Shraddha ji, so our condition was only कि send me the script, send me your concept, we will talk later, whatever you मतलब, and अभी तक शायद हम लोग की agreement और उस level पे we haven't gone for the financial issues and anything. She is liking the concept passionately. I am very much fortunate that as an anchor, she is she has a more involvement in the concept and shooting and everything, and she is taking all the details. और आज भी कल भी उसका शाम में फोन आया कि I want to go into more details of the costume and approaches. तो जी आप क्या कहेंगे? मैं बस जब मैंने शब्जी से कॉन्सेप्ट सुना तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई इसको होस्ट करने के लिए, बिकॉज एक एंकर जो होता है एक स्टोरी और ऑडियंस के बीच का लिंक होता है, और ये ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ हैं जिनको अगर हम समाज के सामने ला सकें और उनसे कुछ लोगों का भला हो सके तो वो हमारा एक बहुत बड़ा एफर्ट हो। इन चीज़ों को देखकर सामने आए और इस तरह से मतलब समाज को सिखाने के लिए जो भी वो कर सकें वो करें। तो आई वॉज तो जस्ट थ्रिल्ड विद द कॉन्सेप्ट कि आई हैव नेवर डन सच अ कॉन्सेप्ट। तो मेरे लिए तो ये बहुत इट्स जस्ट लाइक माई ओन प्रोडक्शन, माई ओन बेबी। तो कहीं पर तो आपकी आंखें भर आई होगी किसी एपिसोड में? हाँ, मैंने बताया कि जब वो एसिड अटैक वाली स्टोरी मैं कर रही थी, अभी मैंने कुछ ही स्टोरीज अभी की हैं। उस एसिड अटैक की स्टोरी पे एक लड़की जो विलिंग नहीं है, क्या उस लड़की की कोई इच्छा नहीं है क्या? जैसे पुराने ज़माने में एक लड़की अपने विश से, स्वयंवर से अपने पति को, अपने वर को चुन सकती थी, तो आज की लड़की के पास ये फ्रीडम क्यों नहीं है? अगर वो किसी को नहीं पसंद करती है तो वो उसे ना क्यों नहीं कह सकती? सिर्फ इसलिए कि कोई दूसरा उसे पसंद करता है तो एक ज़बरदस्ती वो करके या उसे डरा के धमका के ये तो कोई न्याय नहीं है। और उसके बाद जो नित्या, जो हमारे कैरेक्टर का नाम है, जो वो चीज़ें फेस करती है वो बहुत ही सीरियसली, वो बहुत इमोशनल है। जब किसी इंसान के साथ वो चीज़ें घटती हैं वही उस चीज़ को समझ सकता है। तो आई रियली फेल्ट, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट। सर फिक्सन है या कुछ रियल भी रखा है आपने, कुछ क्या कैसे क्या? We have taken the real story, but we need to not to go into their private details. But the one-liner is the same. What we, our concept, want to put this through the fictionalized. कब से ऑन एयर कर रहे, क्या कुछ प्लान वगैरह? Today is the curtain raiser from 9:30 to 10 on DD National. From tomorrow, the episode will telecast. डेली, इट्स डेली और इसलिए वीकली? It's Friday, Saturday, Sunday, 9:30 to 10. And from through you, I am very much thankful to Mr. Vipin Patwa and Dr. Sagar. Sagar Sahab has written a very good lyrics. I think you all guys have seen this, and this is very touchy and very emotional. And the Vipin Patwa and the sad song of Mr. Tush Mishra. It is all, I say, it's a good team effort. I'm a very much small producer, but I got all the support from every part of my life. As a financial support, as a creative support, as a song, as a lyrics, moral support. I'm very much thankful to my friends, my actors, my creatives, and किसी ने परेशान नहीं किया, चेक कब दे रहे हो? किसी ने परेशान नहीं किया, चेक कब दे रहे हो? We have a very young, energetic, good team, and all are putting their effort. Mistakes हो रही हैं, but see, when you are putting your whole energy in a very positive way,
गलतियाँ तो फिर वो लगती नहीं, दे आर पॉजिटिव एंड दे आर पुटिंग देयर हार्ट माइंड एंड सोल। थैंक यू बोल, थैंक यू। कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, किस तरह का प्रोग्राम है, क्या है इसमें? आप देखेंगे तो ये टिपिकल सास बहू वाला ड्रामा है, पहले भी बोल चुका हूँ। अलग ही शो है ये औरतों के ऊपर हुए अत्याचारों के बाद वो कैसे उभर के अपनी नई ज़िंदगी में कामयाब होती है। मतलब संभल सकता है आदमी, लेकिन कामयाब भी होना एक इम्पोर्टेंट बात है, तो वो कामयाब भी हो जाती है। और यही है शो का मीनिंग। तो ये रियल है या फिक्शन कुछ जुड़ा हुआ क्या है? एक्चुअली स्टोरीज रियल लेके उसको फिक्शन में कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि कुछ इश्यूज है, मतलब इसके लिए वो फिक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो किन किन इशू को ध्यान में रखा गया है इस प्रोग्राम में खास तौर पर? किन किन इशू को ध्यान में रखा गया है? एक्चुअली मेन तो बेस्ट वुमेंस है जिनके ऊपर हुए अत्याचार। बहुत सारे इशूज हैं, कई लड़की, मतलब एक लड़की HIV पॉजिटिव है, एसिड अटैक तो बहुत सारे होते हैं हमारे इधर। तो उसके बाद जो घटनाएँ होती है, क्योंकि उनका तो एक तो वुमन की ब्यूटी होती है वही फेस, और उसी को जलाया जाता है। उसके बाद उसको समाज घृणा की नज़र से देखता है, फिर भी वो संभल के अपनी ऊंचाइयाँ, मतलब अपना जो भी मुकाम है वो पा लेती है। सारे ऑन लोकेशन जो थे वो रियल थे या फिर? सारे लोकेशन रियल नहीं थे, उसको मतलब कन्वर्ट कर दिया गया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो भी रांची या भोपाल में जाके शूट करें, तो अभी थोड़ा यूज्ड हो जाए, फिर हम लोग वहाँ पे शिफ्ट करके कुछ ओरिजिनल स्टोरीज उधर ही वहीं पे शूट करने वाले हैं। बताएंगे इसके पहले आपने क्या किया? ये फर्स्ट आपका एपिसोड है, मतलब फर्स्ट सीरियल है आपके, पहले कुछ किया था? तो बताएंगे बैकग्राउंड के बारे में अपने। एक्चुअली मैं मतलब 8-9 साल एसोसिएट डायरेक्टर था हिंदी में, अप टू बालिका वधू तक। उसके बाद मैंने एक लड़की अंजानी काजल जैसे सोनी के शो थे, उसमें सेकंड यूनिट में काम किया। बाद में मैं मराठी इंडस्ट्री में 7 साल इंडिपेंडेंट शो करके आया हूँ, स्टार प्लस, कलर्स मराठी। और एक एसोसिएट फिल्म की थी साई बाबा की, और अरुण फ्रैंक करके जो अभी डीडी के जाने माने डायरेक्टर थे, अभी हिंदी में उनका ध्यान था, उनको भी मैंने एसोसिएट किया था। तो क्या प्लान किया फ्यूचर में प्लान किया आपके? फ्यूचर में प्लान है कि देखता हूँ अभी यहाँ से वापस एक मुझे ये स्टोरी से कुछ बिगनिंग मिलती है अच्छी से। तो फिल्म के पीछे भी है या फिल्म कुछ करना है बड़े पर्दे पे? फिल्म का है चालू, अभी तो पाइपलाइन में, लेकिन जब तक फ्लोर पे नहीं जाता तब तक शायद मैं बोलूँगा नहीं। हिंदी और मराठी? हाँ नहीं, हिंदी है। बिकॉज सैराट भी आज काफ़ी हिट हो चुकी है, तो इस तरह से हाँ, तो प्लान है कि मराठी भी कर लो? मराठी भी करूँगा, मराठी तो करनी है, मतलब ठीक से वो तो होगी लाइक सैराट नहीं, वो हर एक का सब्जेक्ट है। सैराट अभी उसने बनाया, वो मास्टर पीस हो गया है, वो बनेगी नहीं बनेगी पता नहीं, शायद उससे अच्छी भी बने, शायद उससे बुरी भी बने। ओके, थैंक यू सर। के बारे में और क्या किरदार कर रहे हैं आप? मैंने इसमें रोहन का किरदार निभाया है एक्सीडेंट वाले में। इसमें यही कहना चाहूँगा कि जब मैंने मतलब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी, मुझे लगा था कि बहुत इमोशनल स्टोरी है, सारी इमोशनल स्टोरी है, और लाइक वुमेंस एम्पावरमेंट पर है। लाइक किसी भी औरत को आप किसी को कमज़ोर नहीं समझ सकते आप। इसमें है कि लाइक आपने हमारा इसमें दिखाने का यही चीज़ दिखाई है कि लाइक ना हौसला आप हारेंगे और ना हम हारेंगे, ना हम आपको हारने देंगे। तो सबसे ये कहूँगा कि यार आप लोग सब जाके देखिए, तब आप हारेंगे। थैंक यू सर।